वजीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने प्रगति भवन से बैक वक्त 9 अजला में नए मेडिकल कॉलेजेस का इफ्तिताह किया। हिंदुस्तान के तिब्बी मैदान में जुमा के रोज तेलंगाना ने एक नई तारीख रकम कर दी है। 9 अजला में सरकारी मेडिकल कॉलेजेस और क्लासेस का अमली तौर पर एक ही दिन में आगाज हुआ है। वजीर आला तेलंगाना केसीआर ने प्रगति भवन से कामारेड्डी, करीमनगर, खम्मम, जयशंकर, भोपालपल्ली, कुमराम भीम, आसिफाबाद, निर्मल, राजन्ना, सिलसिला, विकाराबाद और जंगामा अजला में नए कॉलेजों का इफ्तिताह किया। मुताल्लिका अजला के वुज़रा और अरकान असम्बली ने इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की। याद रहे कि हुकूमत ने गुज़िश्ता साल रियासत में 8 नए मेडिकल कॉलेजेस शुरू किए थे और इस साल 9 कॉलेजेस खोले गए हैं। इस मौके पर बात करते हुए सीएम केसीआर ने कहा कि तिब के मैदान में ये एक नई तारीख है। उन्होंने कॉलेजेस में दाखिला लेने वाले तलबा को मुबारकबाद पेश की और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। बीआरएस सरबराह ने अगले साल मजीद 8 मेडिकल कॉलेज शुरू करने का ऐलान किया है। తెలంగాణ రాష్ట్ర చరిత్రలో ఒక ఉజ్వలమైనటువంటి జాజ్వల్యమైనటువంటి దినం ఈ రోజు. ఇది తప్పకుండా సువర్ణాక్షరాలతో లిఖించుకోదగ్గటువంటి ఘట్టం. ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొంటూ అనేక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటూ ఉంటాం. కానీ చాలా ఆత్మ సంతృప్తి కలిగేటువంటి గొప్ప సన్నివేశం. ఎందుకంటే ఏమైతే తెలంగాణ ఎట్లుంటుంది, తెలంగాణ వాళ్ళకి పరిపాలన చేత కాదు అని రాష్ట్రం ఏర్పడే ముందు ఎగసెక్కాలు పలికి అనేక ఎగతాళి చేసినటువంటి పరిస్థితులు మనం అందరం కూడా చూసినాం. దానికి ప్రత్యక్ష సాక్షులుగా ఉన్నాం. అటువంటి తెలంగాణలో ఈరోజు ప్రతి జిల్లాకు ఒక మెడికల్ కాలేజ్, దేశంలో ఏ రాష్ట్రంలో లేని విధంగా మొత్తం 34 ప్రభుత్వ మెడికల్ కాలేజీలు ఉండేటట్టుగా రాష్ట్ర కేబినెట్ ఆల్రెడీ ఆమోదించి తీర్మానం చెప్పడం జరిగింది. ఆ పాలసీ అంతా అయిపోయింది, గవర్నమెంట్ పాలసీ. అంటే ప్రతి జిల్లాకు మెడికల్ కాలేజీ మనకు ఉండబోతా ఉంది. ఈ సంవత్సరంతో దాదాపుగా 24 కాలేజీల వరకు మనం చేరుకున్నాం, కొత్త కాలేజీలు. గతంలో మనకి 5 మెడికల్ కాలేజీలు ఉంటే ఈరోజు ఆ సంఖ్య 26కు మనం చేరుకోవడం జరిగింది. నెక్స్ట్ అకాడమిక్ ఇయర్లో మరొక 8 కళాశాలలు నూతనంగా ప్రారంభం కాబోతా ఉన్నాయి. దానికి కేబినెట్ ఆల్రెడీ ఆమోదం ఇచ్చింది. ఫార్మాలిటీస్ కంప్లీట్ చేసుకొని వాటి కూడా మనం ప్రారంభించుకుంటాం. तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामाराव ने जीनोम वैली में सिंजन इंटेल रिसर्च लैबोरेटरी के तौसी कामों की संग बुनियाद तकरीब में शिरकत की। वजीर आईटी केटीआर ने जीनोम वैली में मौजूदा रिसर्च कैंपस में वाक़ सिंजन इंटेल की रिसर्च लैबोरेटरी के तौसी कामों की संग बुनियाद तकरीब में हिस्सा लिया। इस मौके पर अपने ख्यालात का इजहार करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें बीआरएस हुकूमत की जानिब से तेलंगाना में लाइफ साइंस के शोबे की तरक्की के लिए किए गए इक़दामात पर फ़ख्र है और वो सिंजन की तौसी को रियासत में कंपनियों को फराहम किए जा रहे ताउन और ज़बरदस्त मौक़े का सबूत समझते हैं। केटीआर ने कहा कि सिंजन एक मारूफ आलमी कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 788 करोड़ रुपए की सरमायाकारी के साथ जदीद तरीन रिसर्च लैब बनाने और 1000 मुलाजिमतें फराहम करने का मंसूबा रखती है। We compete with cities, we compete with other states. Fact is, I love Bangalore as much as I do Hyderabad because I think we have it in us to collaborate, to complement each other's efforts, grow together for the betterment of India. Because between Hyderabad and Bangalore, we literally rule the roost when it comes to biology and technology. There's no reason why we can't have a life sciences / technology corridor between these two brilliant cities and continue to work on synergies, continue to work with each other. Because ultimately, end of the day, politics can happen in the last 6 months at the time of an election. But if you ask me, for the remaining 4.5 years, good economics is good politics. As long as we focus on wealth creation. And I mean this from the bottom of my heart. Good economics is good politics because ultimately, if you look at the world, starting all the way from Joe Biden to Narendra Modi to KCR to Siddaramaiah, I think the biggest challenge is creation of opportunities, creation of employment. And as long as we continue to work with industry, as long as we ensure that the industry grows without any hindrances and roadblocks from the government, I think that's our bounden duty and primary duty. We will continue to prosper as a nation. We have done some remarkable things, Kiran, in this state. One of the things I'd like to talk about is you asked me when we were breaking the ground earlier today as to what would happen if you need to expand further. I told you right there that if you need to expand, there is no need to consult with the government.
You can procure the additional land and start construction on day one without talking to any of us. No other Indian state will tell you this. This is a process called self-certification. You can declare yourselves, Sinjin or Biocon, as being in compliance with the law of the land. You can hit the ground running. No conversion, no factory permission, no nothing. You can start on day one and you can start constructing. Simultaneously, we request that you submit all the information online to us on the TS iPass portal. Once we get the information, we take 15 days to process it and come back to you with a yes or a no answer. If you do not deliver on the 15-day window, on the 16th day it's a deemed approval. No other Indian state will tell you this. On the 16th day, this fine gentleman Jayesh or Narsimha Reddy or even Shakti can be levied a fine of rupees 1,000 per day if they are held responsible for the delay in a clearance. It has not happened so far in the last 8 years. In the last 8 years, we have given more than 24,000 approvals through this system. We have created more than 2.4 million direct job potential, and we've been able to attract an investment of $50 billion. And in the last 9 years, we have not done a single investor summit. We have not had to do it. None of the vibrant summits, none of the magnetic summits, none of the triumphant summits. We have just focused on getting our work done. We have relied on our existing investors, and we continue to build that narrative. All I would request of you, Kiran, is we would also want you to be a part of the brilliant academic setup in Telangana, in Hyderabad. Because I believe that as long as you have the talent, before coming here to Sinjin, I was at another location and there was चीफ मिनिस्टर तेलंगाना की दफ्तर व रुकन कानून साज कौंसिल के कविता को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत हासिल हुई है। अदालत उस्मा ने इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को हिदायत दी है कि वो इस महीने की 26 तारीख तक कविता को समन जारी न करे। तफसीलात के मुताबिक दहली शराब पॉलिसी में इल्जामात का सामना कर रही बीआरएस रहनुमा के कविता को ईडी ने 14 सितंबर को नोटिस जारी करते हुए 15 सितंबर को पूछताछ के लिए तलब किया था। कविता सुप्रीम कोर्ट से रुजू हुई थी और उन्होंने नलिनी चिदम्बरम की तरह उन्हें भी राहत देने की ख्वाहिश की थी। सुप्रीम कोर्ट बेंच ने कविता की अर्जी पर ईडी के वकील से जवाब तलब किया। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने अदालत को बताया कि उन्हें कोई इतराज नहीं है। इसी तनाजुर में जस्टिस कोल की बेंच ने ईडी को 26 सितंबर तक की कविता को समन जारी न करने का हुक्म दिया है। वाज़ेह है कि ईडी ने दफ्तर वज़ीर आला के खिलाफ शराब घोटाले में मुलविस होने के शवाहिद वज़ा नहीं किए हैं और एक मरतबा फिर उन्हें नोटिस जारी किया गया है, जिस पर कविता ने इस नोटिस को सियासी नोटिस करार देकर उसे मुस्तरद कर दिया है। हैदराबाद में तेलंगाना बीजेपी के ज़ेर एहतमाम 17 सितंबर को हैदराबाद लिबरेशन डे की याद में मोटरसाइकिल रैली निकाली गई। तेलंगाना बीजेपी सदर व मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी की क़यादत में सिकंदराबाद परेड ग्राउंड से हनमकुंडा पार्कल तक मोटरसाइकिल रैली निकाली गई। साबिक़ मरकजी वजीर व तेलंगाना इलेक्शन इंचार्ज प्रकाश जावड़ेकर ने रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। वाज़ेह है कि अमृत महोत्सव के हिस्से के तौर पर हैदराबाद लिबरेशन डे मनाने के मकसद से निकाली गई मोटरसाइकिल रैली में बीजेपी के कई सीनियर कायदीन ने हिस्सा लिया। बीआरएस सरबराह व चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने पार्लिमानी पार्टी के इजलास की सदारत की। मरकजी हुकूमत की जानिब से खुसूसी पार्लिमानी इजलास तलब किए जाने के पेश नज़र बीआरएस सरबराह के चंद्रशेखर राव ने प्रगति भवन में जुमा के रोज पार्लिमानी पार्टी का इजलास तलब किया। इजलास में 18 सितंबर से मुनक्किद होने वाले खुसूसी पार्लिमानी सेशन में बीआरएस के अराकीन पार्लिमान के किरदार पर तबादला ख्याल किया गया। दरियासना केसीआर ने एमपीज को मुख्तलिफ तजावीज़ात पेश की। एमपी ववीरा राजू रविचंद्र के केशव व दीगर ने इजलास में शिरकत की। जॉइंट साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन टीम की पहली रीजनल कॉन्फ्रेंस शहर हैदराबाद में मुनक्किद की गई। तेलंगाना समेत मुख्तलिफ रियासतों के महकमा पुलिस के आला ओहदेदारों ने एक रोज़ा कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। हैदराबाद के तेलंगाना स्टेट साइबर सिक्योरिटी ब्यूरो हेडक्वार्टर में मुनक्किद एक रोज़ा सेशन कम वर्कशॉप के इनेकाद का मकसद साइबर जराइम का पता लगाने और उसके रोकथाम के लिए रियासतों में किए जा रहे इक़दाम से वाक़फ़ियत हासिल करना और मुताल्लिक़ा शोबों को मुस्तहकम करना है। एक रोज़ा वर्कशॉप में
सुंदरी नंदा IPS स्पेशल सेक्रेटरी MHA, DGP तेलंगाना अंजनी कुमार, DGP गोवा जसपाल सिंह, स्टीफन रविंदर डायरेक्टर तेलंगाना स्टेट साइबर सिक्योरिटी ब्यूरो, राजेश कुमार CEO I4C, श्रेष्ठ जैन ज्वाइंट CP इंटेलिजेंस महाराष्ट्र के अलावा रियासत झारखंड, कर्नाटक, राजस्थान, गोवा और हरियाणा के सीनियर अफसरान ने शिरकत की। रियासती वज़रा मोहम्मद महमूद अली, तलासानी श्रीनिवास यादव और सबिता इंद्रा रेड्डी ने अजीम तर बल्दी हैदराबाद हदूद में डबल बेडरूम मकानात के दूसरे मरहले के मुस्तफिदीन के इंतखाब के लिए ऑनलाइन खुरानंदाजी अमल की निगरानी की। हैदराबाद जिला कलेक्टर के दफ्तर में डबल बेडरूम मकानात की दूसरी किस्त के मुस्तफिदीन के इंतखाब के लिए ऑनलाइन खुरानंदाजी का इनेकाद हुआ, जिसकी निगरानी वज़रा मोहम्मद महमूद अली, तलासानी श्रीनिवास यादव और सबिता इंद्रा रेड्डी ने की। मेयर विजय लक्ष्मी गढ़वाल, MLCs, MLAs, JHMC कमिश्नर, कलेक्टर्स व दीगर भी इस मौके पर मौजूद थे। वजीर तलासानी ने इस मौके पर कहा कि गरीब लोगों के ख्वाबों को पूरा करते हुए उन्हें मकान देने का सेहरा हुकूमत तेलंगाना के सर जाता है। चीफ मिनिस्टर KCR की क़यादत में तमाम सहूलियात के साथ डबल बेडरूम मकानात तामीर किए जा रहे हैं। तेलंगाना वो वाहिद रियासत है जो इस्तेफादा कुनिंदगान पर माली बोझ डाले बगैर मुफ्त मकानात दे रही है। उन्होंने सियासी मुदाखलत के बगैर शफाफ तरीके से मकानात की तकसीम किए जाने का इंकशाफ किया। वाज़ेह है कि पहले मरहले में 11,700 अहल अफराद में डबल बेडरूम मकानात तकसीम किए जा चुके हैं। दूसरे मरहले में 21 सितंबर को 13,300 अफराद में मकानात तकसीम होंगे। ఫాలో అప్ చేయడమే కాకుండా వాళ్ళు కూడా అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజానికానికి ఈ కార్యక్రమం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం కానివ్వండి, ఆ జీవితాలు అంటే ఆ కుటుంబాలు ఎంత సంతోషంగా ఉన్నాయో మా ఎమ్మెల్యేలను వాళ్ళ ఇంటికాడికి తీసుకుపోయి వాళ్ళు సన్మానం చేస్తున్నటువంటి సందర్భాలను కూడా మనం దృష్టిలో ఉంచుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉన్నదని చెప్పి నేను ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ, ఈరోజు రిజర్వేషన్లు కూడా మరి ఇప్పుడే కలెక్టర్ గారు చెప్పారు, మరి రిజర్వేషన్లు కూడా ఏ పద్ధతిలో పాటిస్తున్నామని. దీంట్లో వికలాంగులకు కానివ్వండి, ఎస్సీలకు కానివ్వండి, ఎస్టీలకు కానివ్వండి, మరి ఏ విధమైనటువంటి ప్రియారిటీస్ ఇస్తున్నాం, మైనారిటీలకు ఏ విధమైనటువంటి ప్రియారిటీ ఇస్తున్నాం కూడా చాలా కేటగారికల్గా క్లియర్గా పిక్చర్ అంతా మీకు ముందు పెట్టడం జరిగింది. ఈ డీటెయిల్స్ అన్ని కూడా మీకు పాత్రికేయ మీడియా మిత్రులకు ఒక 15-20 నిమిషాల్లో మీకంతా డీటెయిల్గా అంటే ఎక్కడెక్కడ ఇస్తున్నాం. ఒకటి ఏంటంటే దీంట్లో సికింద్రాబాద్ కంటోన్మెంట్, సనత్ నగర్, కుక్కట్పల్లి, కుత్బుల్లాపూర్, ఇదేంటంటే డీపోచంపల్లి కానీ, గాజుల రామారం కానీ, బౌద్ధపల్లి, మరి అదేవిధంగా గోషామైల్, నాంపల్లి, కార్వాన్, ఖైరతాబాద్, జూబ్లీ హిల్స్. कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारवान MLA कौसम मोहिउद्दीन ने हल्के के मुख्तलिफ इलाकों के बस्ती दवाखानों का मुआयना किया। बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी, सदर कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लिमान हैदराबाद की हिदायत पर कारवान के रुकन असम्बली कौसम मोहिउद्दीन ने गोलकुंडा, रिसाला बाजार, रेशम बाग और अकबरपुरा में वाक़ बस्ती दवाखानों का तफसीली मुआयना किया। उन्होंने डॉक्टर्स और तिबी अमले से गुफ्तगू करते हुए तिबी खिदमात और अद्वियात से मुताल्लिक़ तफसीलात हासिल की। दरियासना अद्वियात की कमी का इल्म होने पर कौसम मोहिउद्दीन ने बस्ती दवाखाना इंचार्ज डॉक्टर हर्षा यादव को तमाम बस्ती दवाखानों में अद्वियात मुहैया करवाने की हिदायत जारी की है। MLA के हमरा पार्टी के कॉरपोरेटर्स, सरगर्म कारकुनान व दीगर मौजूद थे। तेलंगाना के इत्तलात और शहरी ताल्लुकात के वजीर डॉक्टर P महेंद्र रेड्डी ने विकाराबाद जिले में नए मेडिकल कॉलेज के क़याम के लिए CM KCR, वज़रा KTR और हरीश राव का शुक्रिया अदा किया है। वज़ीर आला KCR के वर्चुअल सिस्टम के जरिए 9 मेडिकल कॉलेजेस के इफ्तिताह के बाद वजीर P महेंद्र रेड्डी ने अनंतगिरी में शमा रोशन करके मेडिकल कॉलेज का आगाज किया। दरियासना आलमपल्ली चौराहे से निकाली गई तुलबा की रैली में भी उन्होंने हिस्सा लिया। महेंद्र रेड्डी ने अपने खिताब में 9 सरकारी मेडिकल कॉलेजेस के इफ्तिताह पर वज़ीर आला KCR, वज़रा KTR और हरीश राव को मुबारकबाद पेश की और उनका शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि रियासत में कांग्रेस के दौरे हुकूमत में 3 मेडिकल कॉलेजेस हुआ करते थे, लेकिन KCR की क़यादत में 26 मेडिकल कॉलेज कायम हुए हैं जो मुल्क की किसी भी रियासत में मौजूद नहीं है। रियासती वजीर ने कॉलेजेस में भर्ती होने वाले तलबा को मुखातिब करते हुए कहा कि
लोग डॉक्टर्स को खुदा से तशबीह देते हैं। तालीम मुकम्मल करने के बाद वो गरीबों का इलाज अपना फर्ज समझ कर करें। वज़ीर इत्तलात ने साल 2023-2024 में रंगारेड्डी जिले में मजीद 8 तिब्बी कॉलेज शुरू करने का भी ऐलान किया है। శాంక్షన్ ఇచ్చి 200 కోట్లతోటి చక్కగా మెడికల్ కాలేజ్ కూడా మనం ఈరోజు ప్రారంభించుకోవడం జరుగుతున్నది. మరి ఏదైతే తెలంగాణలో మొత్తం 26 మెడికల్ కాలేజీలు కూడా మరి తెలంగాణ ప్రభుత్వం వచ్చినాక శాంక్షన్ చేసుకోవడం కూడా జరిగింది. గతంలో మనకున్న మెడికల్ కాలేజ్ ఏదంటే గాంధీ మెడికల్ కాలేజ్ ఒకటి, ఉస్మానియా ఒకటి, వరంగల్లో వరంగల్ మెడికల్ కాలేజ్ ఒకటి. ఒకప్పుడు ఒక డాక్టర్ చదువుతుందంటే మనం వింతగా చూసేది. మరి ఒకప్పుడు ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ ఇంజనీరింగ్ చేస్తున్నంటే వింతగా చూసేది. ఇలా చాలా ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్తో పాటు ఇలా మెడికల్ కాలేజీలు. ఒకప్పుడు మనం హైదరాబాద్ పట్టణంలో చదువుతున్నాం మా పిల్లలని చెప్పేది. కానీ ఇప్పుడు హైదరాబాద్ పట్టణం కాదు, ఇలా గ్రామీణ ప్రాంతం ఉన్నటువంటి వికారాబాద్ జిల్లా అయింది. వికారాబాద్ జిల్లాలో మెడికల్ కాలేజ్ వచ్చిందంటే చాలా చెప్పుకోదగ్గ విషయం. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు ఇలా ప్రతి జిల్లాలో కూడా మెడికల్ కాలేజ్ ఇచ్చి మరి ఏదైతే तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कारगुजार सदर व संगारेड्डी के रुकन असम्बली जग्गारेड्डी ने गोशा महल हल्के के कांग्रेस कायदीन का एक इजलास मुनक्किद करते हुए 17 सितंबर को तुकुगुड़ा में मुनक्किद होने वाली विजय भेरी सभा को कामयाब बनाने पर तबादला ख्याल किया। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा वो टीपीसीसी कारगुजार सदर जग्गारेड्डी को 17 सितंबर को मुनक्किद विजय भेरी सभा को कामयाब बनाने के लिए गोशा महल समेत 5 हलकों का इंचार्ज मुकर्रर किया गया है। इसी पस मंजर में उन्होंने गोशा महल के कांग्रेस सीनियर कायदीन, यूथ कांग्रेस लीडर्स, NSUI लीडर्स, कारकुनान, MLA के उम्मीदवार, ब्लॉक सुदूर, डिवीजन सुदूर का एक इजलास तलब किया। जग्गारेड्डी ने विजय भेरी सभा की कामयाबी के लिए दरकार इक़दामात पर तबादला ख्याल किया और पार्टी कैडर को मुतहर्रिक हो जाने का मशवरा दिया। दरियासना उन्होंने हल्के के मसाइल भी सुने और उन मसाइल को पार्टी क़यादत की तवज्जो में लाने की यकीन दहानी करवाई। कांग्रेस MLA ने पार्टी के लिए काम करने वालों को मुनज़्ज़म अंदाज में काम करने और विजय भेरी सभा को कामयाब बनाने की हिदायत दी है। नीलोफर अस्पताल की सुपरिटेंडेंट डॉक्टर उषा रानी ने नीलोफर अस्पताल से 6 माह के बच्चे का अगवा होने के वाक़े पर रद्द-ए-अमल का इजहार किया है और इलाज के लिए अस्पताल आने वाले लोगों को बच्चों के साथ लापरवाही बरतने से गुरेज करने का मशवरा दिया है। तफसीलात मुताबिक 14 सितंबर को नीलोफर अस्पताल में एक 6 माह के लड़के के लापता होने का वाक़या पेश आया है। नामालूम खातून अस्पताल में अपने बड़े बेटे के इलाज के लिए आने वाली एक खातून के 6 माह के बच्चे को लेकर फरार हो गई है। नीलोफर अस्पताल सुपरिटेंडेंट उषा रानी ने कहा है कि लड़के के लापता होने की पुलिस तफ्तीश कर रही है। अस्पताल में जगह जगह CCTV कैमरे मौजूद हैं और CCTV फुटेज की जांच करते हुए अगवा करने वाली खातून की शिनाख्त की जा रही है। डॉक्टर उषा रानी ने बच्चों के तय लापरवाही को गैर दुरुस्त करार दिया है और लापता लड़के के वालिदैन को तसल्ली दी है कि वो परेशान न हो, जल्द ही उनका लड़का मिल जाएगा। तेलंगाना के वजीर बराए सिविल सप्लाईज गंगूला कमलाकर ने करीमनगर में मेडिकल कॉलेज और क्लासेस का अमली तौर पर आगाज करने पर CM KCR से इजहार तशक्कुर किया है। वजीर आला KCR ने करीमनगर में वर्चुअली मेडिकल कॉलेज और तालीमी साल का आगाज किया है। इस मौके पर वजीर गंगूला कमलाकर ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। दरियासना गंगूला कमलाकर की क़यादत में संबूर में लोगों ने एक अजीमुशान रैली निकाली जिसमें BRS के अरकान असम्बली, MLCs, तलबा और मुख्तलिफ शोबे हयात से जुड़े लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कुल हिंद मजलिस तामीर मिलत के ज़ेर एहतमाम 74वां जलसा यौम रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 24 सितंबर को नुमाइश मैदान में मुनक्किद होगा। मुंतज़मीन ने नई नस्ल को सीरत तैयबा से वाकिफ करवाने के लिए उम्मत मुस्लिमा से अपने अफराद ख़ानदान के साथ मुक़द्दस जलसे में शिरकत की अपील की है। शहर हैदराबाद में हर साल कुल हिंद तामीर मिलत की जानिब से जलसा रहमतुल आलमीन और जलसा यौम सहाबा मुनक्किद होता है। सदर तामीर मिलत ज़ियाउद्दीन नैयर और सदर नशीन इस्तक़बालिया कमेटी जलसा रहमतुल आलमीन डॉक्टर अब्दुल खदीर ने मीडिया प्लस ऑडिटोरियम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जलसा रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 24 सितंबर को मुनक्किद करने का ऐलान किया।
ज़ियाउद्दीन नैयर ने कहा कि हर साल 12 रबीउल अव्वल को जलसा रहमतुल आलमीन मुनक़्क़िद होता है। इस मरतबा चूँकि उसी दिन गणेश जुलूस निकाला जा रहा है, किसी किस्म के नाखुशगवार वाक़े को रोकने और अमन अमान की बरकरारी की गर्ज से ये जलसा 28 सितंबर के बजाय 24 सितंबर को मुनक़्क़िद हो रहा है। उन्होंने तमाम मुसलमानों बिलखुसूस नौजवानों से अपील की है कि वो 28 सितंबर को कोई जुलूस ना निकालें और ना ग्रुप की शक्ल में गश्त करें। ज़ियाउद्दीन नैयर ने जलसे यौम सहाबा 21 अक्टूबर को बाद नमाज इशा चंचलगुड़ा जूनियर कॉलेज ग्राउंड में मुनक़्क़िद करने का ऐलान करते हुए कहा कि हैदराबाद में जश्न मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायत के 2 लाज़मी जुज़ रहे हैं। मुल्क के मुमताज़ उलमा इकराम जलसे यौम रहमतुल आलमीन और जलसे यौम सहाबा से खिताब करेंगे। मौलाना उबैदुल्लाह खान आज़म साबिक़ MP और मौलाना मेहदी हसन ऐनी मेहमान मुक़र्रिर होंगे। मुक़ामी मुक़र्रिरीन में शेखुल जामिया मौलाना मुफ्ती खलील अहमद, डॉक्टर एहसन बिन मोहम्मद अल हुमूमी, इमाम व खतीब शाही मस्जिद बाग़-ए-आमा शामिल हैं। सदर कुल हिंद तामीर मिल्लत ज़ियाउद्दीन नैयर ने वालिदैन को नई नस्ल की तरबियत, उन्हें गुमराही के रास्ते से बचाने और सीरत तैयबा, सीरत सहाबा और सहाबियात से वाकिफ करवाने के लिए अपने ख़ानदानों के साथ दोनों जलसों में शिरकत करने की तलक़ीन की है। लोग सब में ये बात पहुँचे कि इस जलसे रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशहीर के लिए हम क्या खिदमात अंजाम दे सकते हैं। हम चाहते हैं कि मुल्क की फ़िज़ा इस आवाम के, जैसे बाज़ लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई आप क्या पैगाम देना चाहते हैं, तो पैगाम देने की बात सिर्फ यह है कि हम जो है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मैसेज है वो हम 74 बरस से देते आ रहे हैं और इंशाअल्लाह देते रहेंगे। और उस पैगाम रसानी में हमारी जो मालूमात हैं उससे ऑथेंटिक मालूमात से जो है हम चाहते हैं कि आवाम तक फैलाएं। और यही पैगाम देते हुए इंशाअल्लाह उम्मीद है कि ख़वातीन भी इसमें शरीक होंगी। और जैसा उमर शफीक साहब ने बताया कि मर्द और ख़वातीन हजरात के लिए इंतज़ाम किया जा रहा है और बड़े पैमाने पर आप में से बेशतर उस रस्ते को देखे हुए हैं। अलबत्ता हालात की वजह से सहाबा का यौम जो मनाए थे हम उसको जो पोस्टपोन किया हुआ है, इंशाअल्लाह 21 अक्टूबर को वो जलसा भी अंजाम दिया जाएगा। बेशक तावनु अलल बिर्रि वला तावनु अलल इस्मी वल उद्वान, नेकी के कामों में एक दूसरे के साथ हमको ताउन करना है और आगे बढ़ना है, क्योंकि मोहब्बत मुझे उन जवानों से है सितारों पे जो डालते हैं कमन। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। रियासत गुजरात के दाहोद के करीब दाहोद आनंद मेमो ट्रेन के इंजन में आतिशबाजी का हादसा पेश आया। चलती ट्रेन में बड़े पैमाने पर आग लगी देखकर मुसाफिर खौफजदा हो गए। तफसीलात के मुताबिक गुजरात की गोधरा से आनंद जाने वाली ट्रेन दाहोद के करीब पहुंचते ही इंजन में आग लग गई और देखते ही देखते दूसरे बोगियों में भी फैल गई। रेलवे लोको पायलट और दीगर अमले ने मुसाफिरीन को फौरी चौकन्ना किया। अपनी जान बचाने के लिए मुसाफिरीन ने जंजीर खींच दी और ट्रेन के रुकते ही नीचे उतर गए। आतिशबाजी का इल्म होने पर फायर ब्रिगेड अमले ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। आतिशबाजी के इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। रेलवे हुकाम ने तमाम मुसाफिरीन के महफूज रहने की इतला दी है। हुकाम आग लगने की वजूहात की तहकीकात में मसरूफ हो गए हैं। तेलंगाना के नागर कर्नूल जिले के अमराबाद मंडल में समेत ग़िज़ा के इस्तेमाल के बाद 40 से ज़ायद तालिबात बीमार हो गई हैं। तफसीलात के मुताबिक अमराबाद मंडल के मन्नानूर गांव में वाक़े ST गर्ल्स हॉस्टल में तालिबात ने रात का खाना खाया, जिसके बाद 40 से ज़ायद लड़कियों की तबीयत बिगड़ गई। उन्होंने शदीद पेट दर्द और सांस लेने में दुश्वारी की शिकायत की, जिस पर स्कूल अमले ने उन्हें करीबी अस्पताल पहुंचाया। बादशाह बेहतर इलाज के लिए तालिबात को अचमपेट सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया है। बीमार तालिबात ने उन्हें फराहम किए जाने वाला खाना समियत और नाक़स होने का इल्ज़ाम लगाया है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता 3 दिनों के अंदर तलबा का समियत ग़िज़ा के इस्तेमाल से बीमार पड़ने का ये दूसरा वाक़या है। निज़ामाबाद के एक अक़लियती स्कूल में भी समियत ग़िज़ा खाने से 103 तालिबात मुतासिर हुई थी। नागर कर्नूल के ST हॉस्टल में पेश आने वाले इस वाक़े का इल्म होने पर मिनिस्टर सत्यवती राठौर ने हुकाम को तलबा की निगहदाश्त और इलाज की निगरानी की हिदायत जारी की है। तलबा यूनियनों और वालिदैन ने श्रीशैलम रोड पर शदीद एहतजाज करते हुए जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।
शाहरुख खान की फिल्म जवान के नगमे पर एक मरीजा का अस्पताल में रक्स करता हुआ वीडियो वायरल हो गया है। शाहरुख खान ने रक्स करने वाली खातून के जल्द सेहतयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात पेश की हैं। शाहरुख खान की फिल्म जवान के रिलीज के एक हफ्ता बाद भी शायकीन में फिल्म को देखने का जोशो खरोश बरकरार है। बॉलीवुड किंग कहलाने वाले शाहरुख खान की फिल्म जवान 650 करोड़ रुपए से जायद कमा कर नया रिकॉर्ड बना चुकी है। फिल्म के नगमे और डायलॉग्स काफ़ी पसंद किए जा रहे हैं। सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर नौजवान लड़के व लड़कियां और कई मशहूर शख्सियात फिल्म जवान के डायलॉग्स और गानों पर रील्स बना रहे हैं। शाहरुख खान की एक खातून परिस्तार का जो कि अस्पताल में जेर इलाज है, फिल्म जवान के नगमे पर रक्स करता हुआ वीडियो वायरल हो गया है। किंग खान ने वीडियो में मौजूद लड़की के रक्स की तारीफ की है और उनका शुक्रिया भी अदा किया है। ट्विटर यानी एक्स पर शाहरुख खान ने लड़की को जल्द सेहतयाब होकर फिल्म देखने और अस्पताल से बाहर आने के बाद एक और रक्स का वीडियो बनाने को कहा है। लड़की का रक्स करता वीडियो और शाहरुख खान का ट्वीट दोनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। तेलंगाना के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस अंजनी कुमार ने कहा है कि माओवादिस्ट लीडर संजय दीपक राव को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से 6 कारतूस, एक तफंचा, लैपटॉप और दीगर अशिया जब्त कर ली गई हैं। डीजीपी अंजनी कुमार ने अपने दफ्तर में सहाफियों से बात करते हुए कहा कि मगरबी घाट स्पेशल जोन कमेटी के सेक्रेटरी संजय दीपक राव को उस वक्त गिरफ्तार कर लिया गया है जब वो एक इजलास में शिरकत के लिए छत्तीसगढ़ जा रहे थे। उन्होंने बताया कि तेलंगाना इंटेलिजेंस महकमे की इतला पर साइबराबाद पुलिस के ओहदेदारों ने संजय दीपक राव को हिरासत में ले लिया। शिद्दत से मतलूब माओ नवाज के कब्जे से 6 कारतूस, एक तफंचा, लैपटॉप, 47,250 रुपये नकद रकम व दीगर अशिया जब्त कर ली गई हैं। डीजीपी ने बताया कि संजय दीपक राव को मजिस्ट्रेट के रूबरू पेश कर दिया गया है। ఈ ప్రాసెస్లో ఈ సబ్జెక్ట్ చాలా టైం ఛత్తీస్గఢ్, బస్తర్ ఏరియా, మాడ్ ఏరియా, అబుజ్ మాడ్ ఏరియా కూడా విజిట్ చేశారు. ప్రతి టైం మర్జర్ డిస్కషన్లో అతను చాలా ముఖ్య భూమిక ప్లే చేశారు. మురళీధరన్ తర్వాత దీపక్ కలిసి ఫ్రీక్వెంట్ విజిట్ టు మాడ్ ఏరియా జరిగింది ఈ పీరియడ్లో. 2014లో ది మర్జర్ ప్రాసెస్ కంప్లీట్ అయింది. మర్జర్ తర్వాత అతనికి సెంట్రల్ కమిటీ మెంబర్ స్టేటస్ సిపిఐ మావోయిస్ట్ ఆర్గనైజేషన్ లో వచ్చింది. యాజ్ సిసి మెంబర్ వెస్టర్న్ ఘాట్ స్పెషల్ జోన్ కమిటీ he was in charge, and urban areas of Karnataka, Kerala, Tamil Nadu, Maharashtra, ये अन्नी स्टेट की अर्बन एरिया लो he was in charge. जनूबी हिंद की रियासत केरला में निफा वायरस अपना जोर दिखा रहा है। कुल 6 अफराद इस वायरस का शिकार हो गए हैं और 2 लोगों की जान जा चुकी है। केरला का कोझिकोड जिला निफा वायरस से शदीद मुतासिर है। वजीर सेहत वीना जॉर्ज ने जुमा के रोज एक और शख्स के निफा वायरस से मुतासिर होने का इंकशाफ किया है। आपको बता दें कि कोझिकोड में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। 7 गांव कंटोनमेंट जोन करार दे दिए गए हैं। बतौर एहतियात दफातर, स्कूल्स और बैंक्स बंद कर दिए गए हैं। दूसरी जानिब हुकूमत ने इंकशाफ किया है कि निफा वायरस बांग्लादेश का वेरिएंट है। वायरस की यह किस्म एक शख्स से दूसरे में फैल सकती है। आपको बता दें कि दिमाग को नुकसान पहुंचाने वाला निफा वायरस सन 1990 में पहली बार सामने आया था। जनूबी हिंदुस्तान में इसका पहला केस 19 मई 2018 में केरला के कोझिकोड में दर्ज हुआ था। तब से ये वायरस 4 मरतबा केरला में फैल चुका है और 21 लोगों की जान जा चुकी है। आलमी इदारे सेहत ने कहा है कि ये वायरस जानवरों से इंसानों में फैलता है। बराह रास्त मुतासिरा शख्स से राब्ते के सबब भी वायरस के फैलने का इम्कान है। बुनियादी तौर पर थूक और नाक के जरिए ये वायरस फैलता है और आंत में दाखिल होने पर औसतन 4 से 15 दिन के अंदर इसकी अलामात जाहिर होती हैं। वायरस से मुतासिर अफराद में बुखार, सर दर्द, खांसी, सांस लेने में दुश्वारी और थकावट जैसी अलामात पाई जाती हैं। मुतासिर होने वालों में से तकरीबन 75% के मरने का इम्कान भी है।
सेहत हुकाम के मुताबिक इसका कोई खास इलाज या दवा नहीं है, लिहाजा मास्क पहनना, हाथ धोना, इर्द गिर्द साफ सफाई बरकरार रखना जरूरी करार दिया गया है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।